میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں مشرقی افریقہ کے ایک ملک تنزانیہ کی۔ تنزانیہ جس کا مکمل نام متحدہ جمہوریہ تنزانیہ ہے۔ اس ملک کے مشرق کی جانب بحیرہ ہند، شمال کی جانب کینیا اور یوگنڈا، مغرب کی جانب روانڈا، برونڈی اور کانگو آباد ہیں، جبکہ جنوب کی جانب سے اس ملک کو زیمبیا، ملاوی اور موزمبیق نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مشرقی افریقہ میں بحیرہ ہند کے ساحل کنارے واقع یہ سرزمین ہیروں اور جواہرات سے مالا مال ہے۔ ساحل سمندر پر ہونے کے باوجود اس ملک کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ ہزاروں سالہ قدیم زندگی کے آثار رکھنے والے اس ملک میں داخلے سے قبل نئے آنے والے سبھی ساتھیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ دوستو، تنزانیہ کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے، مگر تنزانیہ میں انسانی آبادکاری 3000 قبل مسیح میں مغربی افریقہ سے آنے والے لوگوں کے ذریعے ہوئی، جو بھیڑ بکریوں کو پالنے کی غرض سے سرسبز و شاداب چراگاہوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرقی افریقہ میں پہنچے اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ 8ویں صدی عیسوی میں اسلام آج کے تنزانیہ کی خود مختار ریاست زنزبیر، جسے زنجبار بھی کہا جاتا ہے، میں داخل ہوا۔ 1498 میں جب پرتگیزی ایکسپلورر واسکو ڈے گاما مشرقی افریقہ میں لنگر انداز ہوا تو یہ مشرقی افریقہ کے ممالک پر پہلی بار کسی یورپی کے قدم تھے، جس نے یہاں کی جنگلی زندگی، سونے اور ہیروں کے بے شمار ذخائر دیکھنے کے بعد یہاں 32 دن قیام کیا۔ اپنے 32 روزہ قیام کے بعد جب واسکو ڈے گاما نے اپنے وطن پیغام بھجوایا کہ کسی طرح افریقہ کا یہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا جائے، کیونکہ یہ سرزمین پرتگال کو بہت زیادہ نفع دینے والی تھی۔ 1505 عیسوی میں پرتگیزی جزیرہ زنجبار کے علاوہ تنزانیہ کے بیشتر حصے پر پھیل گئے۔ پرتگیزیوں کا زنجبار پر قبضہ 18ویں صدی کے شروع تک رہا، جس کے بعد مشرقی افریقہ میں جزیرہ نما کئی ممالک، جن میں زنجبار اور دیگر ایسے ممالک جو آج آزاد ممالک کہلائے جاتے ہیں، سلطان آف عمان کی حکومت کے ماتحت چلے گئے، کیونکہ عمان حکومت کی جانب سے زنجبار شہر کو زنجبار کا دارالحکومت بنایا گیا۔ 1700 عیسوی میں عمانی حکمرانوں نے زنجبار کو پرتگیزیوں سے آزاد کروایا تھا، جبکہ 1890 میں زنجبار پھر برطانوی حکومت کے زیر اثر آ گیا۔ 10 دسمبر 1963 کو زنجبار کو حکومت برطانیہ سے آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی کے اگلے سال ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ انقلاب زنجبار کے نام سے شروع ہونے والی خانہ جنگی سلطان کی حکومت ختم ہونے کا سبب بنی۔ انقلابیوں نے امریکی اور برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا، ہزاروں اربوں کو شہید کر دیا گیا اور زمینوں کو قومی ملکیت قرار دیا گیا، جبکہ تنزانیہ کی دوسری آزاد ریاست ٹینگانیکا پر 1916 میں حکومت برطانیہ کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا تھا۔ 9 دسمبر 1961 کو ٹینگانیکا کو برطانیہ سے آزادی نصیب ہوئی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں زنجبار اور تنزانیہ کے کافی علاقوں پر جرمن فوج کی جانب سے بھی قبضہ کیا گیا تھا اور ان علاقوں کو مشرقی افریقی جرمن کہا جانے لگا تھا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے دوران 1916 میں برطانوی فوجیوں نے جرمن فوجیوں سے یہ علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ان دو ریاستوں نے 26 اپریل 1964 کو اتحاد ٹینگانیکا اور زنجبار قائم کیا، جس کے بعد تنزانیہ کا وجود قائم ہوا۔ اس اتحاد کے بعد یہ ملک دنیا میں تنزانیہ کے نام سے جانا جانے لگا اور اس ملک کا کل رقبہ 9,47,303 مربع کلومیٹر ہو گیا تھا۔ تنزانیہ کے رقبے کا اگر پوری دنیا سے موازنہ کیا جائے تو یہ دنیا کا 31واں بڑا ملک بنتا ہے۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق تنزانیہ کی کل آبادی 5,55,72,000 افراد تھی اور آبادی کے حوالے سے تنزانیہ کا شمار دنیا میں 26ویں زیادہ آبادی والے ملک میں ہوتا تھا۔ دار السلام، جس کا مطلب امن و امان والا شہر کے ہیں، یہ شہر 1860 میں عمان کے سلطان کی موسم گرما میں رہائش کے لیے بنایا گیا تھا۔ آزادی اور اتحاد کے بعد سے اس شہر کو تنزانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا تھا۔ دار السلام آج بھی افریقہ کے چند مقبول ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور آج بھی اس شہر کو مشرقی افریقہ کا نیو یارک کہا جاتا ہے۔ دار السلام پر قدرتی اور تنزانیہ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اس شہر کا شمار تنزانیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1974 میں اس شہر کا ملکی دارالحکومت کا درجہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ شہر 1393 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا
और अपने अंदर तकरीबन 45 लाख अफराद को समोए हुए है। तंजानिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी इसी शहर के पास है, जबकि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा शहर होने का एजाज डोडोमा के पास है। डोडोमा शहर को 1964 में तंजानिया का दारुल हुकूमत बनाया गया था। इस शहर की मौजूदा आबादी 5 लाख अफराद के करीब है। इंतजामी लिहाज से देखा जाए तो आज भी दार इस्लाम ही दारुल हुकूमत है, जबकि डोडोमा शहर को सिर्फ कानून साजी की हद तक दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया है। तंजानिया की आबादी के अगर मज़हब की बात की जाए तो आज़ाद रियासत ज़ंजिबार में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। ज़ंजिबार की 98% आबादी मुस्लिम, जबकि सिर्फ 2% आबादी मसीही है, जबकि पूरे मुल्क की आबादी में मुसलमानों की तादाद 40% है। इन 40% में 15% ऐसे लोग हैं जो खुद को अहमदी मुसलमान कहते हैं, हालांकि इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जबकि 55% आबादी मसीही लोगों की है। बाकी बचते 5% में यहूदी, हिंदू, सिख और बुद्ध मत के मानने वालों के अलावा एक छोटी सी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो खुदा के होने पर ही यकीन नहीं रखते। तंजानिया के बारे में अगर दिलचस्प और चुभते हकाइक की बात की जाए तो तंजानिया में 40% लोग आज भी $2 की कमाई पर गुजारा कर रहे हैं। इन $2 में ही इन लोगों ने खाना खाना होता है और जरूरियात जिंदगी को पूरा करना होता है। हालांकि ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर अच्छे हुक्मरानों की कमी और मगरबी ममालिक का ज्यादा असर और सूख होने की वजह से ये मुल्क आज भी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। इंतजामी सहूलत की खातिर इस मुल्क को 24 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तंजानिया में इंसान की औसतन उम्र 61 साल है। हर साल 1 लाख बच्चों में से 500 बच्चे HIV, मलेरिया और डायरिया की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। तंजानिया में आज भी इंसानी स्मगलिंग की जाती है। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इस मुल्क में काफी कानून बनाए गए हैं। जहां पर इस मुल्क के हुक्मरान इंसानी स्मगलिंग को रोकने से कासिर हैं, वहीं इस मुल्क में मंशियात की जा बजा स्मगलिंग की जाती है। तंजानिया में अगर मंशियात पर पाबंदी लगा दी जाए और मंशियात की स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए तो इंसान की औसतन उम्र आने वाले 5 सालों में 70 साल तक पहुंच जाएगी। तंजानिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तंजानिया पाकिस्तान से 5489 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पाकिस्तान से तंजानिया जाने के लिए ज्यादातर सयाह 3 से 4 अफ्रीकी ममालिक का इकट्ठे सफर करते हैं, जिनमें आप अफ्रीका में दाखिले के लिए केनिया का सफर करें और केनिया से बजरिया बस तंजानिया में दाखिल हों। आपको तंजानिया में दाखिले के वक्त वीजा दे दिया जाएगा, क्योंकि तंजानिया पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मुहैया करता है। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने के लिए फ्लाइट रिटर्न टिकट्स आपको 1 लाख या 1 लाख से कुछ ज्यादा पैसों में मिल जाएंगे, जबकि तंजानिया में होटल का कमरा शेयरिंग बेस पर $10 से $20 पर, जबकि प्राइवेट 4000 तक आसानी से मिल जाता है। तंजानिया की करेंसी को तंजानवी शिलिंग कहा जाता है। यह करेंसी पाकिस्तान और भारत की करेंसी से कमजोर तस्वर की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले शिलिंग की तादाद 19.70, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में आने वाले शिलिंग की तादाद 33.51 हो जाएगी। तंजानिया की मजमूई खाम मुल्की पैदावार 178.7 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $3,533 है। जनूबी अफ्रीका, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड और केनिया तंजानिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में सबसे बड़े पार्टनर हैं। तंजानिया में आपको पाकिस्तानी ना होने के बराबर नजर आएंगे, जबकि इंडियन वहां एक बड़ी मिकदार में कारोबार करते नजर आएंगे। इंडियन लोगों के सबसे ज्यादा फैले हुए कारोबार में रेस्टोरेंट हैं, जहां चटपटे खानों के दीवाने अफ्रीकी, अमरीकी और दीगर यूरोपीय दौड़े चले आते हैं। तंजानिया की आमदनी का 24% हिस्सा ज़राअत और ज़राअत की पैदावार से हासिल किया जाता है। कपास, चाय, कॉफी और तंबाकू तंजानिया में सबसे ज्यादा काश्त और मुनाफा देने वाली फसलें हैं। लोग भेड़, बकरियां और मवेशी भी पालते हैं, जिनसे एक बड़ी मिकदार में गोश्त और खालें हासिल की जाती हैं, जबकि मुर्गबानी और माहीगीरी भी काफी लोगों का जरिया रोजगार बना हुआ है। हीरे, सोना, लोहा, नमक, सिल्वर, तांबा और जिप्सम इस मुल्क की माइनिंग इंडस्ट्री के हवाले से और इस मुल्क को तरक्की देने के हवाले से अहम तरीन मादनियात हैं। कुदरती तेल और गैस 2 मजीद ऐसी मादनियात हैं जिनसे अभी तक खातर खा फायदा नहीं उठाया गया है, मगर मुल्की जरूरियात को पूरा करने के काबिल बनाया जा चुका है। तंजानिया के 38% रकबे पर जंगलात और जंगली जानवरों का बसेरा है। मुल्क में 16 कौमी पार्क बनाए गए हैं,
जहां अफ्रीकी जानवरों का एक बड़ा जखीरा पाया जाता है। मुल्क भर में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लोग ज्यादातर अफ्रीका के इन ममालिक में जंगली हयात को देखने आते हैं। साल 2016 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 12,84,279 अफराद थी और इस साल तंजानिया ने सैरो सियाहत से जो आमदनी हासिल की थी वो खाम मुल्की पैदावार का 17.5% बनती थी। तंजानिया में तकरीबन 12 लाख लोगों का रोजगार सियाहत के शोबे से लगा हुआ है। तंजानिया का कॉलिंग कोड +255 और डोमेन नेम TZ है। तंजानिया में 100 से ज्यादा छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जबकि सिर्फ 4 एयरपोर्ट से इंटरनेशनल हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा बाकी एयरपोर्ट्स की हालत अबतर हुई पड़ी है। मुल्क में ज्यादातर सफर बजरिया बसों और टैक्सियों के जरिए किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में सफर करना है तो आपके लिए बसों और गाड़ियों में जाना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप लंबे क़याम पर हैं और आप तंजानिया के छोटे बड़े सभी शहरों को देखना चाहते हैं तो अपने पेट की खैर मना लीजिएगा, क्योंकि तंजानिया में चंद बड़ी बड़ी सड़कों के अलावा बाकी सड़कों की हालत ऐसी है कि वहां सफर करने के बाद यकीनन आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। स्वाहिली इस मुल्क की कौमी जुबान है, जबकि स्वाहिली और अंग्रेजी दोनों जुबानों को सरकारी जुबानों का दर्जा दिया गया है। मुल्क में 120 से ज्यादा जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। दीगर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में बांतू जुबान, डटोगा, मकोंडे और चागा जुबान अहम तरीन है। फुटबॉल इस मुल्क की कौमी खेल है। मुल्क के ज्यादातर लोग फुटबॉल को देखना और खेलना पसंद करते हैं, जबकि दीगर मकबूल तरीन खेलों में नेटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और रग्बी शामिल हैं। लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरह तंजानिया की भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे बोंगो मूवीज के नाम से पुकारा जाता है। बोंगो मूवीज के अलावा इसे स्वाहिलीवुड के नाम से भी पुकारा जाता है, जो हर साल सैकड़ों फिल्में बना रही है। फिल्म इंडस्ट्री से भी यह मुल्क अब अच्छा खासा कमाई कर रहा है। फी मरबा किलोमीटर के हवाले से अफ्रीका में सबसे ज्यादा जानवर तंजानिया में ही पाए जाते हैं। तंजानिया में पाए जाने वाले जानवरों की इकसाम 430, जबकि इनकी तादाद 40 लाख से भी ज्यादा है। मेपिंगो ट्री, जिन्हें अफ्रीकन ब्लैकवुड ट्री भी कहा जाता है, दुनिया के महंगे हार्डवुड दरख्तों में से एक हैं। इन दरख्तों को आप तंजानिया में हर जगह बआसानी देख सकते हैं। किलिमंजारो पहाड़ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ की ऊंचाई 19,340 फुट है। ये पहले एक आतिशफशां पहाड़ हुआ करता था, मगर अब मुकम्मल ठंडा है। तंजानिया में वाक़ई ये पहाड़ तंजानिया समेत पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची जगह है। ज़ंजबार जजीरे के अलावा कुल 50 जजीरे हैं जो इस वक्त तंजानिया की मलकियत हैं। नारियल केकड़ा, जिसे पाम थीफ भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा तंजानिया में ही पाया जाता है, जिसे तंजानिया के लोगों के अलावा दीगर दुनिया के लोग भी बड़े शौक से खाते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से साझी करते हैं, जिनमें खुराक, फूल और दीगर अशिया होती हैं, लेकिन तंजानिया अपना कौमी तराना जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ शेयर करता है, यानी इनके कौमी तराने में कोई खास फर्क नहीं है। रुआहा नेशनल पार्क तंजानिया का वो पार्क है जहां मशरकी अफ्रीका के सबसे ज्यादा जंगली हाथी रहते हैं। ये वही पार्क है जहां पूरी दुनिया के 10% से ज्यादा शेर भी रहते हैं। अफ्रीका के 20% जानवर तंजानिया में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका में तकरीबन 2500 इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। अगर हम सिर्फ तंजानिया की बात करें तो अकेले तंजानिया में पाए जाने वाले परिंदों की इकसाम 1100 है, जबकि केनिया में पाए जाने वाले परिंदों की तादाद 1106 है। जबकि इस मामले में सबसे ज्यादा इकसाम के परिंदे कोंगो में पाए जाते हैं, जहां पर लगभग 1130 इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। तंजानिया में 162 इकसाम के कबाइल रहते हैं। हर कबाइल अपने रस्मों रिवाज और रहन सहन के हवाले से एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होता है। इतने ज्यादा कबाइल का मुल्क होने की वजह से आजादी के बाद से कभी इन कबाइल में खाना जंगी नहीं देखी गई। हालांकि आज भी तंजानिया के 20% लोग नहायत गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये लोग माल मवेशी पालते हैं और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब खुदा ने इन्हें भूखा सुलाया हो। आपने जिंदगी में शेरों को दरख्तों पर चढ़ते जरूर देखा होगा, मगर यकीनन आपने ये सब टीवी में देखा होगा। तंजानिया में मौजूद लेक मनियारा नेशनल पार्क दुनिया का शायद वो वाहिद पार्क होगा जहां के शेर दरख्तों पर चढ़ने वाले होते हैं। इस पार्क में मौजूद तकरीबन सभी शेर दरख्तों पर बंदरों की तरह बआसानी चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थी तंजानिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो
تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن لازمی دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے جس سے ہم اپنی ویڈیوز میں مزید بہتری لا سکیں تو برائے مہربانی بذریعہ کمنٹ ہمیں ضرور ارسال کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک ایسی ہی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔